Hello students, today we'll discuss worksheet 32 of class 9, chapter 8, motion graphical representation of the speed. Now we can calculate the speed of an object by using distance time graph. As we know that linear motion can be uniform and non-uniform, but when the object travels equal distance in equal interval of time, we know that it is known as uniform speed. And by distance time graph, the straight line shows that the object is having a uniform speed. A curved line in a graph shows a non-uniform speed. That means the slope of distance time graph represents its speed. Higher is the slope, so higher will be the speed of the object, and we can easily calculate the speed of the object from the distance time graph. Now if we see the graph, a straight line is showing that it is having a uniform motion. Now mark 2 points A and B on this slope. As you are seeing in the worksheet, draw a line parallel to x-axis from a point A and draw another line parallel to y-axis from B. These two lines meet at a point and this point is denoted as C. Now this is a triangle A, B and C. Now AC denotes the time interval, that is T2 minus T1 and from the x-axis, and BC denotes the distance travelled, that is S2 minus S1 along the y-axis. Therefore, this object which is covering a distance from A to B, it covers a distance S2 minus S1 and time taken is T2 minus T1. So if we calculate the speed, as we know the formula for speed is distance upon time, and the distance travelled is S2 minus S1 and time taken is T2 minus T1. So from the graph, if we take the digits, that will give you 38 minus 28 upon 56 minus 42, and the answer is coming to be 0.71 kilometer per hour. So in this way we can use distance time graph to calculate the speed of an object. Now as we are seeing in a worksheet, if the distance time graph, it is showing an irregular line, that is from point A to point B, then C and D. So from point A to B, the object is traveling with a uniform speed. The straight line is showing a uniform speed. From B to C, as we are seeing the distance is 3 meter, means the distance is constant and the time is moving from 5 to 7 seconds. So the object is said to be stationary. Again from C to D, the car is moving with a higher but uniform speed, because the slope is more as compared to A to B. So as the slope of CD is more than A to B, so the speed is higher, and as it is a straight line, so it is a uniform speed. Now as we are seeing three distance time graph which shows different types of motion. First graph, as it is a straight line between distance and time, so that means this straight line shows that an object is moving with a uniform speed. In B distance time graph, as the line is not regular, it is irregular, so it shows non-uniform speed of an object. The third graph, that is the C graph, which is showing a distance constant and the time is changing or the time is increasing. So with change in time, distance is the same, which shows that the object is stationary or object is at rest irrespective of time. Time is changing. अब एक बार इस वर्कशीट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम ग्राफ में एक सीधी सरल रेखा देखते हैं तो वह
सीधी सरल रेखा क्या दर्शा रही है कि गति एक समान है। वस्तु समय के साथ साथ समान दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं, और चाल को दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अगर ये सीधी रेखा की जगह अगर वक्र है तो हमें यह पता चलता है कि वस्तु की चाल एक समान न होकर वस्तु की चाल कैसी है, असमान, जो कि हमें दूरी समय ग्राफ से हम उसको पहचान सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इस ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। जैसा कि हमें ग्राफ में एक सीधी सरल रेखा दिख रही है, उस पर हमने एक पॉइंट लिया A और दूसरा पॉइंट लिया B। अब जो x एक्सिस है उस x एक्सिस के पैरेलल हमने एक A से लाइन खींची और एक लाइन हमने खींची है B से, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। अब ये दोनों लाइनें एक जगह पर एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट हमने ले लिया C। अब इस ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल से अगर हम देखेंगे तो जो AC है वो x अक्ष पर समय दर्शा रहा है, जो हो जाएगा T2 माइनस T1, और BC जो है वो y अक्ष पर है, जो क्या दर्शा रहा है, दूरी S2 माइनस S1। तो एक वस्तु अगर बिंदु A से B तक जाने में T2 माइनस T1 का समय लेती है और दूरी कितनी तय कर रही है, S2 माइनस S1, तो हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। चाल इसकी होगी दूरी बटा समय, और दूरी हमने जैसे भी कैलकुलेट किया S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1, और यहाँ पर हमारे को जो वैल्यू दी हुई है वो है 38 माइनस 28 अपॉन 56 माइनस 42, जिससे आंसर हमारा आ रहा 0.71 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा कि वर्कशीट में हम 3 ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ A दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है वो सीधी सरल रेखा क्या दर्शा रही है कि वस्तु की चाल एक समान है। ग्राफ B क्योंकि रेखा सीधी नहीं है, एक वक्र में है, तो वह यह दर्शाती है कि वस्तु की चाल असमान है। और तीसरा ग्राफ C दूरी और समय के बीच में वो एक सीधी रेखा है, किस पे, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये सीधी रेखा क्या दर्शा रही है कि एक वस्तु एक जगह पर स्थिर है या विराम अवस्था में है और समय के साथ साथ वह उसी जगह पर खड़ी है। तो ये ग्राफ हमें दर्शा रहा है कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये 3 अलग अलग ग्राफ होप स्टूडेंट्स हमें समझ में आ गए होंगे। सीधी रेखा मीन्स यूनिफॉर्म या एक समान चाल, वक्र अगर है रेखा में तो असमान चाल, और अगर x अक्ष के पैरेलल है तो वस्तु विराम अवस्था में है। अब एक बार हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम ग्राफ देख रहे हैं दूरी और वस्तु में, अब यहाँ ग्राफ में हमारी x एक्सिस समय बता रही है और y एक्सिस दूरी। तो अभी जैसे 1, 2 या 3 सेकंड का समय लग रहा है, 1 सेकंड समय लगने में वस्तु 2 मीटर ट्रैवल कर रही है, 2 सेकंड में 4 मीटर और 3 सेकंड में 6 मीटर। तो अगर हम T2 माइनस T1, सपोज 3 ले लेते हैं हम T2 और 2 लेते हैं T1, तो 3 माइनस 2 विल गिव यू 1, और 2 और 3 के लिए डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर एंड 4 मीटर। सो S2 is 6 and S1 is 4, 6 minus 4 gives you 2. So speed is equals to D upon T, that will give you 2 upon 1. So answer will be 2 meter per second. उसी तरह से अगर हम 2 और 1 को लेकर कैलकुलेट करें, 4 और 2 को लेकर कैलकुलेट करें, तब भी आंसर सेम आएगा। Now second question is the difference between uniform and non-uniform speed. पहला डिफरेंस तो यही है, दोनों के ग्राफ को अगर हम देखें, सो यूनिफॉर्म इज गिविंग अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ इज irregular or it is a curve. And second difference is object is traveling equal distance in equal interval of
time, and in case of non-uniform, unequal distance in unequal interval of time. थर्ड क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है तो एक स्ट्रेट लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सो इट इज गिविंग अ कर्व लाइन, जैसा कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं। और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कर्व लाइन है मींस द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस मींस time is changing but the distance or the object is at rest. It is at one position irrespective of the time. Next question and the last question is what is the slope of the distance time graph? अभी जैसे वर्कशीट में भी हमने देखा था कि the slope of the distance time graph represents the speed, या वो क्या दर्शा रहा है, चाल को दर्शाता है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी। इजी है, सिंपल है और बड़ी मेहनत से ये वर्कशीट्स बन रही हैं। तो आप इस वर्कशीट को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और जितनी मेहनत करके हम टीचर्स ये वर्कशीट्स बना रहे हैं तो उतनी ही मेहनत से आप भी इन वर्कशीट्स को देखें, समझें और इनको क्वेश्चन आंसर्स को करें। पहले अपने आप सॉल्व करें और उसके बाद यहाँ पर आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, और लर्न भी ज़रूर करना है साथ साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।